STN Live. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب जब तक ये तैयारी नहीं होगी तो उसका फ्रंट पेज दिखाई देगा। क्यों से ही होगा नहीं नाम तो हाँ नहीं है हाँ नहीं हम लोग He writes how he finds it difficult to balance his family life, staying with 8 years old daughter and 80 years old mother, along with his professional obligations as a doctor during the most challenging circumstances, living every moment with a gripping fear of infection, transmission, disease and death while caring for patients was not so easy. The author describes his personal and professional experiences during the हो रहा है तो आगे और क्या होगा ये भी एक रहस्य बना हुआ है, एक भय बना हुआ है। इस दरमियान कितने लोग अपने रोजगार गंवाए, बिजनेस गंवाए, कितना स्वास्थ्य गंवाए, परिवार गंवाए। इस दौर में सबसे शक्तिशाली बाहुबली जिन्हें बोलेंगे, जो अपने परिवार से दूर रह के दूसरे के परिवार के लिए जान पर खेल के डॉक्टर साहब जैसे लोग अपना जिंदगी दांव पर ला के इलाज किए, उनका जान बचाए। ये बहुत बड़ी बात है, हमने तो बहुत करीब से देखा। यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने फोन किया, फिर दूसरे दिन सैनिटाइजेशन हुआ। ये चीजें जो थी हम सबके घर में, सबों ने हम लोग ने अपने अपने घर में देखा कि कोविड की वजह से क्या परेशानी थी। मेरी बेटी भी बीमार पड़ी, उसको जो हमने 15 दिन तक जो है क्वारंटाइन किया, उससे वीडियो से हम लोग 15 दिन तक बात करते रहे। उसको हमने एक ऑक्सीमीटर, जो शायद पहले हम लोग उसके पहले नाम भी बहुत कम ही लोग जानते होंगे, ऑक्सीमीटर, एक डिजिटल थर्मामीटर दिया था। बेटा तुम अपना हमको 2-2 घंटे पे अपना SpO2 और टेम्परेचर बताती रहा करो। दिन में कैसी में किसी शिरकत नहीं कर सका, बल्कि एक साहब पे तो बेटे ने मुझसे इजाजत मांगी, चूंकि मैं अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जनाजा यहाँ ले आ। उनका बाबू हम तो इजाजत दे देंगे, लेकिन फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, सारा फ्लैट के जितने ऑनर थे सब हंगामा करेंगे। और एक केस में हुआ भी, एक साहब अपनी फादर की बॉडी ले आए, बहुत हंगामा हो गया, फिर पुलिस को फोन करना पड़ा। platforms. We did not say hi, hello, but we probably tweeted and so on and so forth. But when it comes to the spiritual well-being or the spiritual life during the COVID-19, what I have observed that many people, they became more spiritual during the COVID-19. And here I would like to ask the audience just to say what is the reason we become more spiritual? Why we become more closer to God? What are those times when we become more closer to God? Can anybody just one or two answer one of the feelings? But certainly there are many more. We didn't eat together because of the fear of the infection again. We were sleeping perhaps in different bedrooms. So my routine was completely different. I would come from the hospital and just say hi and hello. And then I'll just start my other part of the duty, which was doing remote consultation. And I did
WhatsApp consultation, the video calling, telephone consultations for patients from different parts of the world, and including India. Mostly my patients were from India. And those will continue from evening and sometimes till late at night. And during the course of the treatment of the patients which I offered, one of the patients was my own mother-in-law. So she was being treated by me, and she became at some stage so sick that we thought for a moment that we are going to lose her. नमस्कार, आदाब 18 लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। हमारे साथ डॉक्टर रजा साहब हैं, बैटलिंग विद कोविड। उन्होंने डॉक्टर होने के बाद उनको वक्त मिला, इतनी अच्छी किताब लिखी है। इसका मकसद क्या है? नहीं, इसका मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना कि हम डॉक्टर होते हुए भी हम एक इंसान हैं, और जो मेरी एक्सपीरियंसेस हुई हैं इंसानी तौर पे मैंने वो लिखा है, और उसके बाद में मैंने मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस है उसको भी मैंने बयान किया है, और किस तरह से मैंने दोनों लाइफ्स बैलेंस किए हैं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसको मैंने बयान किया अपनी किताब में। वक्त कैसे निकालते हैं जबकि आप इतने बिजी इंटरनेशनल टीम, क्योंकि आपको मेडिकल से सब मिलता है, जिसमें आप किताब लिखने का वक्त कैसे निकालते हैं? हाँ, देखिए, वक्त तो निकालना पड़ा, और क्योंकि मैंने इसे लिखा नहीं कि डायरी के तौर पे, सीधे वो किताब के शक्ल में ही मैं लिखता गया जिस तरह से, और ये काफ़ी टाइम लगा मुझे लिखने में पूरी बुक को, और ये एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, इसमें कई महीने लगे हैं। उसके बाद मेरी बुक ये बुक रिलीज़ हुई मेरी तकरीबन 1 महीने पहले, तो काफ़ी वक्त से मैं लिख रहा था इसके बारे में। कोविड तो ख़त्म हो गया लगभग, लेकिन मैं लिखता रहा। सर, आप बताइए कि आप ये बहुत सीनियर डॉक्टर इंटरनेशनल टीम में, तो डॉक्टर होने के बाद इस तरह से किताब लिखना, इसको आप किस शौक में लिखते हैं? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि कितनी बार कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसके पीछे एक इंसानी दिल होता है, और ये दिल की बात थी, है ना। ये दिल की बात थी कि किस तरह अपनी 8 साल की बच्ची को हम उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। 80 साल की माँ के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हम जो मरीज़ मर जाते हैं, जो के साथ कल तक हम काम कर रहे थे, आज मेरे सामने गुजर जाते हैं, हमको सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफाइड। तो ये कोविड ने बहुत सिखाया हम लोगों को। कोविड को बहुत करीब से देखा शुरुआती दौर में, इसके बारे में आप क्या करेंगे? अभी फिर से माहौल बनना है? नहीं, कोविड का जितना हम लोग जितनी बुराई कर रहे हैं हम उसमें कुछ ने एक सबक भी सिखाया हम लोगों को, और सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपने, जो कहते हैं कि अपने ख़ुद को पहचाने हैं। उतना छोटा सा कीड़ा अगर आपको नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकता है, तो फिर आपकी क्या हैसियत है, आपको जानना चाहिए। ये एहसास ने आज एहसास दिलाया कि डॉक्टर भी एक दिल से लिखते हैं, राइटर, इसके बारे में? बेशक एहसास को ये एहसास हुआ और एहसास दिलाया कि डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, उनके भी दिल है, उनके तासुरात हैं, उनके ख़यालात हैं। वो डॉक्टर रज़ा साहब ने जो गल्फ से तशरीफ़ लाया और यहाँ आकर के उन्होंने अपनी किताब का रस्मी इजरा किया एहसास से के बैनर में, और एहसास से उनके सारे अरकान इनके बहुत ममनून हैं, मशकून हैं कि इन्होंने यहाँ आकर पटना की ये जो सरज़मीन है, ये जो तारीख़ी सरज़मीन है, यहाँ पर इस किताब का रस्मी इजरा इन्होंने किया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप मीडिया वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत खामोशी से और सब्र तहम्मुल से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? एक अच्छा प्रोग्राम था। असल एहसास ने जो है अब तक जितने भी प्रोग्राम किए, 100 फिल्म पे भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था कि आज के मौजूदा हालात पे जो है 100 फिल्म का क्या असर होता है, वो भी बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा था, काफ़ी कवरेज उसको मिली थी। इसके अलावा हम लोगों ने जश्न आज़ादी जो है, जश्न ईद मनाई, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। और सबसे जो शुरुआत हुई कोविड की, तो हम लोगों ने 3 वेबिनार किया। 2 वेबिनार तो डॉक्टर्स थे, जिसमें उन लोगों ने इलाज के बारे में बताया, कैसे आप अपने आप को बचाइए कोविड से, क्या क्या इलाज करना चाहिए। तो उसमें डॉक्टर रज़ा साहब भी थे। और जो तीसरा वेबिनार हम लोगों ने कराया था बच्चों के लिए,
चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन हुआ तो बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाई थी। ख़ास करके साइंस स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिल रहा था। ये सब जो चीज़ें थी तो हम लोगों ने उस पर भी एक वेबिनार किया और बहुत सारे ऐसे काम जो कोविड के लोग या उनके मरीज़ के जो अटेंडेंट थे PMCH के, उनको खाने का इंतज़ाम किया, या बहुत से मरीज़ों को गैस सिलेंडर का या हॉस्पिटल में बेड का, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की। और एक डॉक्टर किताब, मैं भी एक इंजीनियर रहा हूँ, आप जानते हैं अच्छे से कि मैं भी कम से कम 10 कविताएं तो मैंने कोरोना पे लिखी होगी, क्योंकि हिंदी में भी लिखी है, उर्दू में भी लिखी है। तो इंसान है, इंसान का अपना दिल अलग है, उसका प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन दिल सबका एक है, सब एकता रखता है। किसी को ज़्यादा एहसास होता है, उसको वो अपने कलमबंद करता है, कुछ लोग उसको कविताओं में डालते हैं, कुछ लोग नहीं कुछ करते हैं, सिर्फ या कहानियाँ सुनाते हैं। पहले दास्तान गोई हुआ करती थी तो लोग उसको लंबी लंबी दास्तान सुनाया करते थे अपने तजुर्बे से। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। मैंने इसका एक 2 चैप्टर पढ़ा, जिसका मैंने तस्करा अपनी तकरीर में किया भी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हम लोग इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हाँ, डॉक्टर का किताब लिखता है, इसके बारे में क्या? देखिए ये एक बहुत ज़रूरी किताब है डॉक्टर सैयद रज़ा साहब की। और इसकी ये ज़रूरी किताब इसलिए भी कि इनका अपना एक ज़ाती तजुर्बा और मुशाहदा है, और इत्तेफाक से मुझे इस किताब से गुज़रने का मौका मिला इस तौर पर। ये अमेज़न में पर भी ये किताब ज़ाहिर है अवेलेबल है, अंग्रेज़ी में ये किताब है और लगभग इसमें 10 चैप्टर हैं। तो वो सारे के सारे चैप्टर हैं, उसमें एक तरह से केस हिस्ट्री है। और केस हिस्ट्री वो इसलिए पढ़ी जाएगी, एक ये सिर्फ फिक्शन नहीं है बल्कि उनका अपना ज़ाती मुशाहदा है, और यहाँ तक कि वो ख़ुद कोविड से मुतासिर भी रहे। और इस किताब में एक तरह से पूरी किताब को हम जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोविड में जो लोग एक तरह से शहीद हुए उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट भी है ये किताब। इसलिए कि और ये बात अभी आई जब हमने बात की थी रज़ा साहब से कि भाई ठीक है, ये हिंदुस्तान के की जो रीडरशिप है, ज़ाहिर है इसमें अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग तो हैं, लेकिन ये दूसरी ज़बानों में मुंतकिल होनी चाहिए। तो हमारा मशवरा ये था कि उर्दू में और हिंदी में कम से कम ये किताब ज़रूर आनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और एहसास नहीं, ये बिलाशुबह एक बहुत ही अहम तरीन काम किया है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि आने वाले कल में अगर कोविड के हवाले से एक जज्बाती दस्तावेज़ की अगर ज़रूरत होगी तो उसमें रज़ा साहब की ये किताब ज़रूर जो है याद की जाएगी।